Rohit, please ask your friends to join. Am I audible? Sir, they are on the way. They are about to join. Okay. So where we were in our last class, we were discussing about the governors. Okay. Just quickly revise what we have done in our last class. Please reply whether my voice is clear. Yes, sir. So in our last class, we discussed about the type of governors. So first type, that is cross arm type. So this is the configuration where the arms intersect at a point. Okay. Point and the axis of the rotation of the governor passes through that intersection point. Then again, we discussed about the open arm type governor. Okay. The upper arms does not intersect. Okay. And we discussed about the angles, that is theta and beta, radius of rotation and the height of the governor, mass of the fly balls, sleeve, and the movement. Okay. And we have find out the movement about the point O of the forces acting on these fly balls. Okay. So we've taken the moment about this point O of this centrifugal force that is acting outward on the ball because of the rotation of your governor, and mg force that is acting downward, right? So this was the simple construction of your Watt governor. Here one consideration we have made, okay, that is the mass of sleeve is 0, or you can say the mass of sleeve is negligible. Sleeve mass is massless. तो यहाँ पे जो स्लीव का मास था ये ऑलमोस्ट इक्वल टू हमने 0 पुट किया था. Right? Then we develop a relation between theta, beta, radius,
and the height of the governor, we have find it that if we increase your omega, theta and beta will increase, r will increase, h will decrease. Okay, तो मैक्सिमम हाइट जितना आपकी स्लीप मूव कर सकती थी वो डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है ना. एक स्लीप मूव्स डाउन, एक चीज का मतलब वेलोसिटी आपकी डिक्लाइन कर रही है. प्लीज इसको आप एक बार खुद आप मेमोराइज करके देखिए, सोच के देखिए. Okay, so theta, beta and r and h, that was clear. किसी को डाउट है इस वाली रिलेशनशिप में? If anyone has any doubt, you can ask me. Yes, students, please reply. Students, please reply. No doubt. Okay. आगे चले. So after developing this relationship and finding the moment about point O, we have developed the relationship n square is equal to 895 by h. So equation for Watt governor. This was the equation for Watt governor. And then we find out the values of h, means change in your height delta h. तो हमें पता चला कि 60 rpm के बाद this गवर्नर बिकम्स इनसेंसिटिव. मतलब ये कोई भी वेरिएशन नहीं दिखाता, ये अपना काम करने से चूक जाता है. सो that gives a sign that this Watt governor is not practically applicable for higher speeds. छोटे इंजन्स में हम इसको लगा सकते हैं बट प्रैक्टिकली ये काम नहीं करता. ओके, so the Watt governor has become insensitive beyond 60 rpms, so thus practically this governor fails very everywhere. 60 rpm पर मिनट का मतलब है एक सेकंड में एक रोटेशन ले रहा है. दैट इज वेरी वेरी स्मॉल ओमेगा. आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी वेरी स्मॉल. तो इतनी स्पीड से तो बिल्कुल बहुत से तो साइकिल से भी कम हो गया, राइट. फिर हमें फायदा क्या आएगा गवर्न करने का जब हमारे साथ इतनी स्पीड हमारी है ही नहीं. हमें तो हाई स्पीड को कंट्रोल करना है ना. सो दैट्स व्हाई दिस वॉट गवर्नर फेल्स. नाउ अनदर टाइप ऑफ गवर्नर्स हम बात कर रहे थे कल जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था. एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो इमेज. यस, दिस इज. सो फर्स्ट वन दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स में आपका था पेंडुलम टाइप. इसके अंदर था वॉट गवर्नर. दूसरा टाइप था लोडेड टाइप, राइट. सो लोडेड टाइप में एक तो आता था आपका डेड लोड, यानी कि डेड वेट लोड, एंड दूसरा आता था आपका स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर्स. तो डेड लोड में सबसे पहला था पोर्टर गवर्नर एंड देन प्रोएल गवर्नर. दिस इज ऑफ डेड लोड. देन अगेन स्प्रिंग लोडेड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है पिकरिंग, विल्सन हार्टनल, हार्टन गवर्नर एंड हार्टनर गवर्नर, राइट. सो अभी आज हम डिस्कस करेंगे डेड लोड टाइप के अंदर डेड वेट गवर्नर्स, दैट इज पोर्टर गवर्नर. ठीक है.
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, नाउ अब आ रही है बस। यस सर। ओके, ये बीच में कट कैसे जाती है आवाज? दोबारा बताता हूं मैं। तो कहां तक सुन लिया था आपने? ये वाला मैं बता रहा था, वो समझ आया था? So this यस is, सर। yes, the free body diagram showing the forces acting on your Porter governor. So यहाँ पे हमने क्या किया है, the mass of sleeve, जो हम sleeve का mass है, it has now certain mass m. जबकि हम पोर्टर गवर्नर में अब जो अब ऊपर का जो वॉट गवर्नर था, वहां पे हमने मास लिया था 0, स्लीव का मास वॉट गवर्नर में 0 था। लेकिन यहाँ पे मास इज नॉट इक्वल टू 0, इट हैज सर्टेन मास m, एंड ड्यू टू दिस मास the gravitational force will act on this, and g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन इम्पैक्ट कर रहा होगा मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो? ठीक है, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का हम छोटा सा एक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, रिकैप कर लेता हूँ। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, बट दो तरह के हमारे पास फ्रिक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। हैव यू हर्ड अबाउट बोथ दीज टर्म्स? यस, प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. ठीक है, सो प्लीज हेल्प मी आउट। सो दिस इज अ बॉडी, say mass m, and now the mass of body is equal to 1, okay, 1 kg. Now how much gravitational force will be acting on this body? G F due to gravity, Fg will be m into g. Suppose g is equal to 10, so roughly 10 Newton of force will be acting on this body, gravity की वजह से। Yes or no? Yes, sir. Now देखो यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं ट्रिबोपेयर। मींस व्हेन देयर आर टू surfaces are in contact and it had some roughness here, कुछ रफनेस होगी, बिकॉज ऑफ दिस रफनेस देयर विल बी अ फ्रिक्शन। एंड जब भी फ्रिक्शन की बात करते हैं देयर कम्स अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ सपोज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, and you know the coefficient of friction has is mass is unitless, so it does not have any unit, mu is equal to 0.5. Now the force of friction will be equal to mu times your normal reaction. You know that formula? Yes, sir. So reaction force will be acting opposite to this, upward direction होगी, और जितनी इस पे नीचे एक वर्ड डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है उतनी ऊपर डाउनवर्ड फोर्स होगी, आर रिएक्शन फोर्स। तो मैग्नीट्यूड रिएक्शन फोर्स का 10 न्यूटन हो जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, एंड दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स मैक्सिमम। नाउ अब मुझे बताइए आप कि अगर मैं इस बॉडी को पुश करने की कोशिश करूं और मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल, जो मैंने फोर्स बॉडी पे लगाई दैट इज एफ एक्सटर्नल इज 1 न्यूटन। सो बॉडी क्या आगे बढ़ेगी? No, sir. बढ़ेगी? No, no, sir. नहीं बढ़ेगी। सो हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन दिस बॉडी? यहाँ पे इस तरह से बॉडी पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे की तरफ, जो इसको आगे बढ़ने से मूव करेगा। यस और नो? Yes, sir. तो कितना होगा? ये इक्वल टू 1 न्यूटन होगा। इसने इसको रोक दिया, लेकिन मैक्सिमम तो हम 5 तक लगा सकते हैं इस पे, हमने यहाँ पे बढ़ा दिया 4.5।
तो ये बॉडी भी कहेगी यार तू भी याद रखेगा, ले मैंने भी तेरे को इतना ही दिया, आगे से 4.5 ही इसको दे दिया, इसको बढ़ने नहीं दिया, बट इतना ही रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स इतनी तो देगी ये फोर्स। नाउ मैंने कहा Yes, sir. F इज इक्वल टू 5, क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं, इस बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन अगर आपने 0.0001 भी अगर आपने दिया, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। यस और नो? Yes, sir. तो दैट इज योर स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। नाउ अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ दिस इज फॉर स्टैटिक, अगर मैं बात करूं काइनेटिक की, काइनेटिक की मतलब कि जो बॉडी स्टार्ट हो जाए मूव करना, सो द काइनेटिक फोर्स जो होगी आपकी फ्रिक्शन काइनेटिक फोर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू योर स्टैटिक फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक विल बी 0.4, ये कम होता है हमेशा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट वैल्यू, इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन अप्लाइड फोर्स। आपकी बॉडी एक बार अगर मोशन में आ गई, डायनेमिक मोशन में आ गई, द काइनेटिक फोर्स, द फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल नॉट चेंज। ओके, सपोज द काइनेटिक फ्रिक्शन की आपके कोफिशिएंट की वैल्यू 0.4 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट विल एक्ट ऑन दिस बॉडी विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन्स। यस और नो? और जहां पे आपके देखो स्टैटिक की जितनी आ रही थी, स्टैटिक की 5 न्यूटन्स, सो इससे तो कम ही है ये, एंड इट डज नॉट चेंज, ये 4 न्यूटन ही रहेगी। कितनी ही आप एक्सेलरेट कर लो बॉडी को, ये आप एक्सटर्नल फोर्स जितना लगाएंगे, F इज इक्वल टू M इंटू A, ठीक है? द मोर द फोर्स मोर विल बी द एक्सेलरेशन बिकॉज मास इज कांस्टेंट। सो आप कितना ही एक्सेलरेशन बढ़ाइए, फोर्स आप बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेट करेगी बॉडी, काइनेटिक फ्रिक्शन विल नॉट चेंज। सो ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, अब दो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए, एक आपका कॉन्सेप्ट रह गया है, वो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देन वी विल मूव टू अ टॉपिक। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? चंचल, यस सर, आ रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, now no need for this. We have to just understand what is going on. क्या हो गया ये? व्हाइट बोर्ड कहाँ चला गया? ओके, नाउ ये बॉडी इसके कांटेक्ट में है, ठीक है? दिस इज योर सरफेस। नाउ मैं जब बात कर रहा हूं, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी, किस किस डायरेक्शन में होगी? अपवर्ड, इसके ऐसे करके 45 डिग्रीज पे होगी, या इसके इधर होगी? यस, The opposite. यस, द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं फोर्स इस तरह से लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, द फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझाने थे। नाउ देखो यहाँ पे मोशन है, स्लीव का मूव में मोशन हो रहा है अप एंड डाउन, यस, विद चेंज इन वेलोसिटी द अप एंड डाउन मोशन ऑफ स्प्रिंग योर स्लीव इज टेकिंग प्लेस। यस और नो? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ, ये आपके अंदर एक ऐसे शाफ्ट है जिसपे ये मूव कर रहा है और यहाँ पे स्लीव लगी हुई है,
क्या यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे इसके फ्रिक्शन नहीं होगा, स्लीव के और इस शाफ्ट के, ये यहाँ पे? Yes sir, होगा. अगर मेरी स्लीव अपवर्ड मूव कर रही होगी तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड होगा. मींस इफ योर ओमेगा इज इंक्रीजिंग, द स्लीव मूवमेंट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन में एंड द फ्रिक्शन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली जब आपकी स्पीड घटेगी, ओमेगा डिक्लाइन करेगा, योर रोटेशनल स्पीड डिक्लाइंस, द स्लीव विल मूव डाउन, और स्लीव मूव डाउन होगी देन फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट अपवर्ड. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. So यहीं पे हम देख रहे हैं this plus minus sign denotes the friction force depending upon the condition. If your omega is increasing, then friction force will act downward and it will assist in mg plus f. So because mg की direction आपने downward ली है, that is positive one, and now friction force is also acting in downward direction, then you take this condition mg plus f. Now if your velocity जो omega है is declining, omega is dropping, so your sleeve will move down, the friction force will act upward, so that resultant force on the sleeve due to this mass m minus f. समझे बात को? Yes, sir. सो ये किस लिए आया है? इस वजह से आया. नाउ बाय 2 बिकॉज आपने एक साइड का फोर्स लिया है, इस वाली इधर का. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर. नाउ m जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया. नाउ दिस थिंग्स विल बी क्लियर यू दैट f is the static friction between the sleeve and the spindle. Now this can be easily understand by you. आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और ये कहाँ एक्ट कर रहा है, बिकॉज मैंने आपको सारी चीज बता दी है. ठीक है, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू और लेस देन म्यू टाइम्स एन. यही मैंने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है मैक्सिमम टू मिनिमम रेंज डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कितनी है. दैट इज इक्वल टू और लेस देन म्यू टाइम्स एन. बट अगर वहीं मैं आपकी बात करूं स्टैटिक फ्रिक्शन की, so that is constant is always equal to mu dynamic or kinetic into n, right? okay, now देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला आपका ट्राइंगल है एक्चुअली में, these are the upper links, these are lower links, and this is the theta angle made by the upper link with the axis of rotation. The beta is the angle made by the lower link with the axis of rotation. r हम कल बात कर चुके थे ना. वो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इस आर्म को ऊपर वाली को नीचे की तरफ और यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएंगी, एंड दिस इज योर ट्रांसवर्स लाइन, एंड दिस बीटा एंगल विल बी द इंटरनल करस्पॉन्डिंग एंगल्स. दिस बीटा विल आल्सो बी दिस एंगल विल बी आल्सो बी बीटा. yes or no? Yes sir. And similarly this angle theta will is this corresponding to this angle will be theta. ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा था उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है फॉर आर इजी कैलकुलेशन. okay, so there are two types of motion, that is rectilinear motion and rectilinear translational motion. Translatory motion and rectilinear motion. So here a point I, you can see the instantaneous centers. Instantaneous centers वो होते हैं जिसके अबाउट आपकी बॉडी किसी रोटेशन में हमें प्रतीत हो. मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को आपको देखूं यहाँ से, इसकी बॉडी को जब ये मूव करेगा और ये मूव करेगा, तो इस पॉइंट से आप देखोगे देन यू विल सी these are moving in a circular path. So that point from which this type of action is being seen is called eye center. ये कैसे निकालते हैं आई सेंटर? जो भी आपके पास लिंक दिया हुआ है, मान लो दिस इज योर लिंक, ये वाला लिंक ड्रॉ किया है मैंने, दिस वाला लिंक ये. नाउ यहाँ पे जो फोर्स है दिस इज इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे जो फोर्स आ रही है वो इस डायरेक्शन में.
Now what is the motion of this point? Motion is in this direction. Yes, बाहर की तरफ आ रहा है, और इसका मोशन कहाँ हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. Now draw the perpendicular lines to the velocity. ऐसे और ऐसे. The point at which they intersect is your instantaneous center, eye center. समझे बात को? Yes, sir. देखो यहां से अगर मैं इस पॉइंट से देखूं, यहाँ पॉइंट पे बैठ जाऊं, आपको लगेगा कि ये वाला जो लिंक है इज इन दिस सर्कुलर डायरेक्शन, और ये वाला लिंक इज इन दिस सर्कुलर डायरेक्शन. देखो, और किसी भी पॉइंट से आपको ये लिंक रेक्टिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशनल मोशन में नहीं दिखेगा. ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर इंस्टेंटेनियस सेंटर, कि आप इससे बॉडी को एक सर्कुलर मोशन में एज्यूम कर सकते हैं. नाउ अब हम इनको नाम देते हैं कि इनके डिस्टेंसेस तो हमें बताने हैं. सो हमने मान लिया दिस इज ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज ए, एंड एट सर्टेन ओमेगा these fly balls are rotating at an angle that is, and the radius of rotation is r, and theta and the beta are the angles. Now this fly ball is also having some mass, and because of this mass the gravitational force is acting downward on this body, so that is mg here, and mr omega square is also acting on this body because of the rotational speed. Getting my point? I have given this c and this b. Now what I will do, I will find out the moment about this instantaneous center and and put it equal to 0. Okay, जो हम लास्ट में हमने किया था, सबसे लास्ट में जब हम कल क्लास खत्म करके गए थे, तो वी हैव फाउंड द मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट O, बिकॉज हमारे पास ये वाली फोर्स नहीं थी. समझ रहे हो बात को, कि इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट क्यों निकाल रहे हैं मूवमेंट, ये समझ लो. सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानो कि व्हाई आर वी नॉट फाइंडिंग अबाउट O. मुझे इस बात का जवाब आप दोगे. Why are we not taking moment about O point, and why we have find out this instantaneous center I and taking this moment about I only, not O? I have explained this thing many times. This is very basic. सर क्योंकि आई सेंटर की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है. किससे सर परपेंडिकुलर है? जो वर्टिकल लाइन से. नहीं बच्चे, वो बात तो ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं. मेरा कहने का क्वेश्चन नहीं समझ रहे आप. मैं कह रहा हूं कि वी आर टेकिंग द मूवमेंट ऑफ दीज फोर्सेस. हमारे पास देखो 3 फोर्सेस हैं. कौन कौन सी? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड जो फ्लाई बॉल पे है. Yes. एक डाउनवर्ड फोर्स इस पे कर रही है, एंड एक तीसरी फोर्स ये है जो स्लीप का मास हमने लिया है. पहले हम स्लीप का मास इक्वल टू 0 लेते थे, बट नाउ वी हैव टेकन दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू 0. तो एक फोर्स ये आ गई. ठीक है, 3 फोर्सेस हैं और हमें तीनों को इक्वल पुट करना है, कहीं से इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. तो मुझे एक चीज बताओ कि हम मूवमेंट ओ के अबाउट क्यों नहीं ले रहे? वी आर टेकिंग मूवमेंट अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर, और हमने एक अलग से इंट्रोड्यूस किया आई सेंटर टर्म. हमने इसकी वेलोसिटीज निकाली, उसके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, एंड वहां के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने देखा कि भाई हाँ इसके अबाउट हम मूवमेंट लेंगे. व्हाई नॉट ओ, जबकि हम वॉट गवर्नर में ओ के अबाउट लेते थे, यहाँ क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एक्सटेंडेड पार्ट है सर ये. सर एक्सटेंडेड पार्ट है इसमें. ओके ठीक है, चलो मैं बताता हूँ. देखो मुझे बताओ, अगर मैं ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेता हूं तो किस किस फोर्स का मूवमेंट आ जाएगा? ओ पॉइंट के अबाउट कौन कौन सी फोर्स मूवमेंट देगी? mr ओमेगा स्क्वायर देगी. देखो मूवमेंट निकालना मैंने कल भी समझाया आपको. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हो, उसको मल्टीप्लाई करना फोर्स से, दैट विल गिव यू द मूवमेंट. यही तो बताया था मैंने. तो मुझे सीधा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये लो, डिस्टेंस कितना आ गया h मल्टीप्लाई बाय mr ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली mg की बात करूं, ये वाली ड्रॉ कर दो,
लाइन ऑफ एक्शन किस पॉइंट के अबाउट लेना, वहां ड्रॉ कर दो, ये रो, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो mg इंटू आर। अब मुझे ये बताओ mg इंटू mg प्लस माइनस f/2, ये वाली फोर्स का एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का, है कि नहीं? यस सर। और तो इसका एक्शन मुझे बताओ परपेंडिकुलर यहां से, इस पॉइंट से इस वाली लाइन का, अगर मैं बात करूं ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर ही नहीं आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अरे भैया ये फोर्स तो हमने कंसीडर ही नहीं की, तो इसका भी इफेक्ट भी तो जाएगा कहीं पूरे सिस्टम में, तो इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो आप? सो ओके अबाउट मूवमेंट आप ले ही नहीं सकते, बिकॉज दिस फोर्स विल बी 0 अबाउट दिस पॉइंट। इसलिए आपने इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाला ताकि आप इस फोर्स का भी काउंट कर सकते हो आप इक्वेशन में, कि भाई हाँ सिस्टम में तो आपकी ये फोर्स है, तो आप इसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? So you find some another parameters to take into consideration. For that we have evaluated this value. समझे बात को? समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट क्यों ले रहे हैं मूवमेंट? क्वेश्चन ही पूछते हो तुम, क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था, सर व्हाई वर नॉट टेकिंग मोमेंट पॉइंट ओ के अबाउट क्यों नहीं ले रहे हैं, आई के अबाउट क्यों ले रहे हैं? आप मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ इसकी, एक बार लिखो अपने पेपर, पेन पेपर लिखो, मुझे इस एक इक्वेशन और इक्वलेट करके बताओ वैल्यूज क्या आएंगी, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। इस आई के अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो मूवमेंट है, देखो जैसे एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां से इसका कितना डिस्टेंस है, आई सेंटर के अबाउट मूवमेंट कितना होगा, एम जी का मूवमेंट कितना होगा, एम जी प्लस माइनस f/2 का मूवमेंट कितना होगा? इक्वेशन बनाओ एक बार, बताओ मुझे। एवरीथिंग इज रिटन ऑन योर स्क्रीन, you have just 2 minutes. Yes, किसी ने बनाया? ओरली बता दो। Yes, students. सर ये निकला है हम्म एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, एक सेकेंड, एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू ए, ओके, एम जी इंटू सी। इक्वल टू कर रहे हो सर पूरी प्लस कर रहे हैं पूरी, क्यों इक्वेशन प्लस क्यों कर रहे हो? सर, क्योंकि ये बोल का है ना सर, प्लस ही होंगे मोमेंट तो। अरे बच्चे मूवमेंट प्लस कैसे हो जाएगा? मुझे बताओ मूवमेंट कैसे लेते हैं हम? आपने डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ले लिया, लेकिन बच्चे उस पॉइंट पे आप बैठो और उस पॉइंट से देखो ये फोर्स उस बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप अपने पैरामीटर सेट करो, आपको क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, उस हिसाब से। नहीं हाँ सर, समझे? जो मैंने उसका जैसा समझ गया। हाँ, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर को नेगेटिव, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो व्हाट यू हैव टेकन दिस साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। Okay, then positive one, ठीक है। Now this mg into c will trying to move this in system, ऐसे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, yes or no? Similarly, and this force about this center is also acting in this clockwise direction. So आप देखोगे तो इक्वेशन आएगी mr ओमेगा स्क्वायर into a, yes, minus
mg into c minus mg plus minus f by 2 into b plus c. यस, ये आएगी कि नहीं आएगी? वहां से माइनस की गलती है सर वैसे। तो यस सर। माइनस की गलती क्यों आ रही है उसको देखो ना। सर वही गलती है ना बस। इट्स नॉट अ गलती, इट्स अ ब्लंडर। सिली मिस्टेक है सर। नहीं, इट्स अ ब्लंडर। अगर आप माइनस की गलती कर रहे हो मींस यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द मूवमेंट। ओके, ठीक है। सर सो भाई आज बहुत आपका टाइम खर्च हो गया आपको बेसिक समझाने में, बट आपको समझ आ गया हो। आई होप हमारी मेहनत बेकार ना जाए। आई एम डूइंग दिस बिकॉज यू पीपल रिक्वेस्टेड कि भाई आपने जो है बेसिक्स का इतना स्ट्रांग नहीं है। अदरवाइज मैं एक सीधा एक टॉपिक में आपके 4 गवर्नर निपटा देता एक क्लास में, बट आई एम टेकिंग इट फ्रॉम रूट लेवल्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली। यस, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, अमन, अमन Yes, sir. प्लीज अटेंड टू योर रोल कॉल। अमन सिंह, Present, sir. आशुतोष सिंह यादव, प्रेजेंट सर। चंचल, Yes, sir. जतिन, कुणाल, मोहित अदाना। यस सर। समझ में आ रहा है तुम्हें बच्चे? यस सर। आ निधिक, रहा है समझ में। नीतीश मिश्रा, नीतीश शर्मा, शुभम कुमार राणा, Yes, sir. तुषार कनौजिया, प्रेजेंट सर। तुषार सैनी, रोहित कुमार जैन। प्रेजेंट सर। ओके, सो आई होप जो मैंने पढ़ाया है दैट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और इक्वेशन आप बनाइए आज, ठीक है? और मैं दिखा देता हूँ आपको इक्वेशन। देखो क्या आ रही है हमारे पास। देखो, दिस इज द इक्वेशन जो मैंने बताई। एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द पॉइंट जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, एंड एम जी इंटू सी, एम जी इंटू सी दिस इज इन काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसको हम उधर लेके इक्वल के बाद, and mg plus minus f by 2 into b plus c is the perpendicular distance from the line of action of the force to the point about which we are finding out the movement। ये दो चीज ध्यान में रखो, मूवमेंट कभी गलत नहीं होगा। पहला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है उससे आपके पॉइंट ऑफ अबाउट के, और वो किस मूवमेंट किस डायरेक्शन में उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। आप उसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, नेगेटिव को ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज को लोगे पॉजिटिव। आपकी कभी गलती नहीं होगी मूवमेंट में। अगर आप डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। दिस इज द इजीएस्ट वे, ठीक है? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच।